تو ہندوستان سے ہمارے ساتھ محترمہ ونیتا شرما صاحبہ جڑی ہوئی ہیں. حیدرآباد انڈیا سے ان کا تعلق ہے اور ہندی لٹریچر میں انہوں نے پوسٹ گریجویٹ کیا ہے اور ان کی ایک کتاب صورت سکھیا کے نام سے سیلف سیٹسفیکشن. اور اس طرح ان کی جو جس چیز نے انہیں اردو شاعری کی طرف متوجہ کیا، انہوں نے ایک کورس لیا ہوا تھا مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں. تو اس سے انہیں لکھنے کی تحریک ہوئی اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس میں نام پیدا کیا اور بہت سے ایوارڈ ان کو مل چکے ہیں. تو میری دعوت ہے ان کو کہ کلام پیش فرمائیں. ونیتا شرما صاحبہ. بہت خوب. جی شکریہ صدارت سر کی اجازت سے. جی عطا کیجیے. سب کو جی بالکل پورے ذوق و شوق سے سماعت کریں گے ہم انشاءاللہ. سب کو آداب، اسپیشل آداب، نمسکار. اور میں ہم سب کی جانب سے 2 لائنیں پیش کرتی ہوں. ارشاد. ڈھونڈتے ہیں گھر کوئی رہتے جہاں انسان ہوں. ڈھونڈتے ہیں گھر کوئی رہتے جہاں انسان ہوں. درد کی دیوار پر راحت کے روشن دان ہوں. روشن دان ہوں. اور آگے کشنا پیش کرتی ہوں. شہیدوں کا خط عوام کے نام. جاتے جاتے شہید چھوڑ گئے تھے شاید، تو پیشے خدمت ہے. خاک ہو کر بھی تمہیں ہم یاد آئیں گے، گر شہادت کی کبھی چرچا چلے گی. خاک ہو کر بھی تمہیں ہم یاد آئیں گے، جب شہادت کی کبھی چرچا چلے گی. راکھ کے اس ڈھیر میں اب تک دبی چنگاریاں ہیں. راکھ کے اس ڈھیر میں اب تک دبی چنگاریاں ہیں. چاند سی بہتی ہوا کے ساتھ رہتی آندھیاں ہیں. بہت خوب. شکریہ. چاند سی رہتی ہوا کے ساتھ رہتی آندھیاں ہیں. ہم شہیدوں کے بجھے دیپک جلائیں گے. ہم شہیدوں کے بجھے دیپک جلائیں گے، گر بغاوت کی کبھی چرچا چلے گی. ہم شہیدوں کے بجھے دیپک جلائیں گے، گر بغاوت کی کبھی چرچا چلے گی. خاک ہو کر بھی تمہیں ہم یاد آئیں گے، جب شہادت کی کبھی چرچا چلے گی. بانٹتے ہیں پیار لیکن ہم کبھی بٹتے نہیں ہیں. بانٹتے ہیں پیار لیکن ہم کبھی بٹتے نہیں ہیں. مشکلیں بڑھتی رہیں پر حوصلے گھٹتے نہیں. مشکلیں بڑھتی رہیں پر حوصلے گھٹتے نہیں ہیں. ہم نہیں کرتے کبھی ایمان کا سودا بتائیں گے. ہم نہیں کرتے کبھی ایمان کا سودا بتائیں گے، پر تجارت کی کبھی چرچا چلے گی. کیا کہنے. بہت عمدہ. ہم نہیں تجارت کی کبھی خاک ہو کر بھی تمہیں ہم یاد آئیں گے، جب شہادت کی چرچا چلے گی. کیا کہنے. دوستی یا دشمنی ہو، دوستی یا دشمنی ہو، خاک آگ سے ٹھنڈی برف سے. دوستی یا دشمنی ہو، آگ سے ٹھنڈی برف سے. سرخ رو کرتے رہے ہم بارہا اپنی طرف سے. سرخ رو کرتے رہے ہم بارہا اپنی طرف سے. ہم تمہاری نظر سے نظریں ملائیں گے، گر حماقت کی کبھی چرچا چلے گی. ہم تمہاری نظر سے نظریں ملائیں گے، حماقت کی کبھی چرچا چلے گی. خاک ہو کر بھی تمہیں ہم یاد آئیں گے، جب کبھی چرچا چلے گی.
मुलाजा फरमाइए। है नहीं मोहताज मंदिर मस्जिदों गिरजा घरों के, है नहीं मोहताज मंदिर मस्जिदों गिरजा घरों के, धड़कनों में पाक से अल्फाज कुर्बत के स्वरों के, धड़कनों में पाक से अल्फाज कुर्बत के स्वरों के। रूबरू होकर मिलेंगे हम दुआ में, गर इबादत की कभी चर्चा चलेगी। क्या बात है। रूबरू होकर मिलेंगे हम दुआ में, कर इबादत की कभी चर्चा चलेगी। आपको कभी हम याद आए। बहुत अच्छा ख्याल, बहुत आखिरी दौर मुलाजा बहुत फरमाइए। बहुत उम्दा कलाम जी, बहुत आला, बहुत आला, शुक्रिया माशाअल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया। बहुत आला। अंतिम लाइनें हैं कि क्या जरूरी बात करने के लिए कुछ बात ही हो, क्या जरूरी बात करने के लिए कुछ बात ही हो, अश्क आंखों से निकलने की वजह है कुछ याद ही हो, अश्क आंखों से निकलने की कुछ याद ही हो, जो कभी हम लिख ना पाए तुम उसे पढ़कर सुनाना। आपका ध्यान चाहूंगी, जो कभी हम लिख ना पाए तुम उसे पढ़कर सुनाना, गर इबारत की कभी चर्चा चलेगी। जो कभी हम लिख ना पाए तुम उसे पढ़कर सुनाना, गर इबारत की कभी चर्चा चलेगी। खाक होकर भी तुम्हें हम याद आएंगे, गर शहादत की कभी चर्चा चलेगी। गर शहादत की कभी चर्चा चलेगी। शुक्रिया। क्या कहने, बहुत आला कलाम, बहुत आला, खूबसूरत, बहुत शानदार कलाम, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत असर कलाम, बहुत आला। बहुत शुक्रिया मोहतरमा वनीता शर्मा साहिबा कि आपने महफिल को चार चांद लगाए। अब हम हिंदुस्तान ही में हमारे साथ शामिल हैं मुना एलिजबेथ साहिबा, हमारी मेहमान एजाज हैं, और उनके मैं 2-3 शेर अर्ज करता हूँ कि कहाँ दर्द दिल की दवा मांगते हैं, तेरी खैरियत की दुआ मांगते हैं, करो वो रूबरू का काश आकर रकीब, करें वो रूबरू काश आकर रकीबों में इतनी शायद मुझे। अगला शेर है कि घुटन से भरी जिंदगी जीने वाले जमाने से थोड़ी हवा मांगते हैं। दावत कलाम है मोहतरमा मुना एलिजबेथ साहिबा। शुक्रिया। एक सदर साहब की इजाजत से एक नजर। जी इरशाद। थोड़ी गाल। एक अधूरी सी मुलाकात पे रोना आया, एक अधूरी सी मुलाकात पे रोना आया, जो न कह पाई उसी बात पे रोना आया, जो न कह पाई उसी बात पे रोना आया। आशिकी से ही मिली, आप ले लो, कोई बात नहीं, थोड़ी देर इसने बैठना फिर इसने चले जाना, सर में फिर आप ले लो। आशिकी से है मिली, आशिकी से है मिली जीस्त में ये रुसवाई, आशिकी से मिली, आशिकी से है मिली जीस्त में ये रुसवाई, तेरे इस प्यार की सौगात पे रोना आया, तेरे इस प्यार की सौगात पे रोना आया। खूबसूरत थी बहुत, ये शेर देखिए कि खूबसूरत थी बहुत कल वो अदा रिमझिम की, खूबसूरत थी बहुत कल वो अदा रिमझिम की, बाढ़ लाती हुई बरसात पे रोना आया, बरसात पे रोना आया। बहुत अच्छा है। शुक्रिया। जो के होंठों पे लगा देते हैं पल में ताले, जो के होंठों पे लगा देते हैं पल में ताले, ऐसे तीखे से सवालात पे रोना आया, ऐसे तीखे से सवालात पे रोना आया। गजल का शेर है, भूलना है तुम्हें पर याद बहुत आते हो,
भूलना है तुम्हें पर याद बहुत आते हो, ऐसे उलझे हुए जज्बात पे रोना आया, ऐसे उलझे हुए जज्बात पे रोना आया। बहुत अच्छा। एक उजड़े हुए खंडर सी खड़ी है ये हयात, एक उजड़े हुए खंडर सी खड़ी है ये हयात, ऐसे बिगड़े हुए हालात पे रोना आया, ऐसे बिगड़े हुए हालात पे रोना आया। और आखिरी शेर है कि जिंदगी यूं तो गुजरती ही रही है लेकिन, जिंदगी यूं तो गुजरती ही रही है लेकिन दूर तुझसे कटे दिन रात पे रोना आया, तुझसे कटे दिन रात पे रोना आया। और मक्ता अर्ज है कि देख मोना यहाँ लाचार हैं इंसान कितने, देख मोना यहाँ लाचार हैं इंसान कितने, ऐसी मायूस सी हर जात पे रोना आया, ऐसी मासूम सी हर जात पे रोना आया, एक अधूरी सी मुलाकात पे रोना आया, जो न कह पाए उसी बात पे रोना आया। बहुत अच्छा कलाम, क्या कहने, बहुत खूबसूरत कलाम हम भी सुन रहे थे मुन्ना अली साहिबा। और अब आगे चलते हैं हिंदुस्तान ही में। पटना हिंदुस्तान का बिहार का एक खूबसूरत शहर है और वहां से हमारी मेहमान एजाज, अगली मेहमान एजाज आराधना प्रसाद साहिबा शामिल हैं। आप हिंदी और उर्दू की मारूफ शायरा हैं और आपके 2 मजमूए छप चुके हैं, बहुत से अवार्ड आपको मिल चुके हैं और खूबसूरत तरन्नुम, बहुत ही खूबसूरत तरन्नुम से आप पढ़ती हैं और मुशायरों की जान है। और हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में आपने मुशायरे पढ़े हैं स्टेज पर और खूब खूब दाद लूटी है। तो गुजारिश है मुहतरमा आराधना प्रसाद साहिबा तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें और मुशायरा लूटें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर मुनव्वर साहब की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे फिर आज इसमें शामिल किया है मुशायरे में। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया, तशरीफ लाई है। जी सदर मोहतरम की इजाजत चाहती हूँ। जी अता कीजिए, आगाज कीजिए। हम मतन गोश इरशाद मतन अता चंद अशार पेश करती हूँ, मतलब देखिएगा। जी इरशाद। ये किसका नाम लब पर आ गया है, ये किसका नाम लब पर आ गया है, जो मेरी रूह को महका गया है। किसका नाम क्या खूबसूरत अदायगी है, बहुत खूब आ गया है। उम्दा उम्दा शेर मुलाहिजा फरमाए। जी बगावत पर इस आमादा हवा से, बगावत पर इस आमादा हवा से, चरागों को भी वाह 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 वाह, बहुत खूब। लब पर आ गया है। फिर देखिए, हो गया जख्मी ये कैसे, परिंदा हो गया जख्मी ये कैसे, शीशे से क्या
टकरा गया है, ये किसका आया गया नाम पर आ गया है। वाह वाह गली में एक अजब सा शोर है क्यों, में एक अजब सा शोर है क्यों, कोई मज़लूम क्या रोता गया है। वाह वाह वाह, क्या कहने। नाम लब पर आ गया है, बहुत बेजार हूँ इस जिंदगी से, बहुत बेजार हूँ इस जिंदगी से, सुनहरा ख्वाब वो दिखला गया है। वाह अच्छा है, वाह वाह बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छा। आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाइए। इरशाद जी इरशाद कीजिए। इरशाद फरमाइए। गम के नहीं मारे जहां में, तुम्ही गम के नहीं मारे जहां में, तुम्हारा गम हमें भी खा गया। हमारा गम हमें भी खा गया। वाह, गम हमें भी खा गया। वाह वाह, हमें भी खा गया। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत लिखी रहे आप। प्यारी आवाज माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इजाजत हो तो एक और गजल पेश करूं? जी जी, कौन इस खूबसूरत आवाज में नहीं सुनना चाहेगा। जरूर सुनाइए। वाह वाह वाह, क्या कहने। माशाल्लाह। मतलब अर्ज किया है। जी इरशाद कीजिए। अता हो। समुंदर बना था, समुंदर बना था, सरापा तमाशा, समुंदर बना था, सरापा तमाशा, अजब तिश्नगी ने दिखाया तमाशा। तिश्नगी ने दिखाया। सरापा तमाशा, अजब तिश्नगी ने दिखाया तमाशा, समुंदर बना था। बहुत मुलाहिजा फरमाए। जी तेरे राह दामन हवा में उड़ा कर, तेरे राह दामन हवा में उड़ा कर, मुझे तुमने कैसा बनाया तमाशा। वाह वाह, तुमने कैसा वाह वाह वाह, बनाया तमाशा। वाह 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 वाह, बहुत खूब, वाह वाह, क्या कहने। बहुत अला, तमाशा क्या कहने, क्या अदायगी है। वाह वाह वाह, समुंदर बना था। बहुत खूब, बहुत बहुत आला। वहाँ किसने खो दिया था सभी कुछ, वहाँ किसने तो, वहाँ किसने खो दिया था सभी कुछ,
यहाँ बन गया है, यहाँ बन गया है ये सहरा तमाशा। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह बहुत आला जी, दोबारा पढ़ें शेर, कीजिए इस शेर को। वाह वाह वाह। किसने खो दिया था सभी कुछ, वाह वाह वहाँ किसने खो दिया था सभी कुछ, यहाँ बन गया है ये सहरा तमाशा। वाह वाह, यहाँ बन गया है ये सहरा तमाशा। बहुत शुक्रिया। शेर समाप्त कीजिएगा जी। इरशाद। मेरी हसरतों के दिए बुझ रहे हैं, वाह क्या मिसरा। हसरतों के दिए बुझ रहे हैं, कोई आके देखे, कोई आके देखे हवा का तमाशा। कोई आके देखे हवा का। बहुत ही आला, बहुत ही अच्छा। कोई आके देखे हवा। वाह वाह, बहुत क्या कहने, क्या कहने। खूबसूरत शायरी। बहुत खूब, वाह बहुत खूबसूरत। शेर देखिएगा। जी जी। जिसे देखो महबूब कहता है अपना, देखो महबूब कहता है अपना, बना चांद ऐसा, चांद ऐसा सरापा तमाशा। बहुत आला जी, वाह वाह वाह, क्या कहने जी, वाह वाह वाह। बना था आपने लतीफ को कितना खूबसूरत इस्तेमाल किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। आखिरी शेर समाप्त कीजिएगा। बदल कर निगाहें ये कहते हो तुम ही, बदल कर निगाहें ये कहते हो तुम ही, ये कैसी वफा है, कैसी वफा है, ये कैसा तमाशा। जिंदाबाद जिंदाबाद, कैसी वफा है, कैसा तमाशा। क्या कहने, क्या कहने। सरापा तमाशा, अजब तश्नगी ने दिखाया तमाशा। समुंदर बना था, बहुत तमाशा बना दे जहाँ। बहुत उम्दा शायरी, बहुत उम्दा शायरी और बहुत प्यारी अदायगी। बहुत शुक्रिया। कलाम और बहुत खूबसूरत लहन। तो वाकई ये जहाँ जाती हैं मुशायरा इसी तरह लूट लेती हैं। बहुत कशिश है इनकी, बहुत कशिश है हमारे इनकी साथ आवाज, आगे चलते हैं जी। हमारे साथ एक और मेहमान शामिल हैं, मोहतरम खुर्शीद राज साहब। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपना कलाम पेश फरमाएं। जी मोहतरम मेरे साहब, किसी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, वो किस लिए? जी जी वही है, मेरा ख्याल खुर्शीद साहब ही हैं जी। वो मैंने अभी देखा उनका मैसेज। जी बहुत शुक्रिया हमीदी साहब, बहुत शुक्रिया। सदर साहब की इजाजत चाहिए। जी जी जी, इरशाद कीजिए। बिल्कुल अता कर। सर एक शेर है, उसके बाद एक गजल पेश करूंगा। जी जी इरशाद। खुर्शीद दिल की तस्कीन के लिए रह गई अब एक तस्वीर, खुर्शीद
दिल की तस्कीन के लिए रह गई अब एक तस्वीर, कभी कभी कहा करती थी वो तू रांझा मैं तेरी हीर। वाह वाह। कभी कहा करती थी वो तू रांझा मैं तेरी हीर। ए गजल है कि आपको क्या मालूम किसी बीमार का दुख, आपको क्या मालूम किसी बीमार का दुख, गरीब फकीर किसी लाचार का दुख। कभी किया नहीं ना आपने राज, कभी किया नहीं ना आपने राज, जान लेवा होता है किसी के इंतजार का दुख। क्या बात है, बहुत खूब। माहीवाल की तड़प बजा थी लेकिन, सोनी माहीवाल को थोड़ा सा ऐड किया उसके कि माहीवाल की तड़प बजा थी लेकिन, कोई सोनी से पूछे दरिया पार का दुख। कोई सोनी से पूछे दरिया पार का दुख, आपके लिए तो एक मामूली सी बात है ना, आपके लिए तो एक मामूली सी बात है ना, कभी अर्श हलेगा तेरे इस यार का दुख। और अगला शेर है कि हुस्न को बिखरता देखा जा बजा गलियों में, कि हुस्न को बिखरता देखा जा बजा गलियों में, हुस्न ही बताएगा हुस्न के बाजार का दुख। हुस्न ही बताएगा हुस्न के बाजार का दुख, कि मेरे साथ घर की चार दीवारी भी रोई, मेरे साथ घर की चार दीवारी भी रोई, बताऊंगा कभी आपको अपनी दीवार का दुख। बताऊंगा कभी आपको अपनी दीवार का दुख, जितने तमाम उम्र मोहब्बतें बांटी हूँ, जितने तमाम उम्र मोहब्बतें बांटी हूँ, कौन समझे भला ऐसे गुनाहगार का दुख। बीच मैदान में शाह सवार को जो शिकस्त हुई थी, बीच मैदान में शाह सवार को जो शिकस्त हुई थी, घोड़ा ही जाने अपने घुड़सवार का दुख। घोड़ा ही जाने। और आखिरी मक्ता है कि खुर्शीद सिर्फ पढ़ती है किताबों में लिखे अल्फाज, खुर्शीद सिर्फ पढ़ती है किताबों में लिखे अल्फाज, काश समझ सकती वो मेरे इन अशआर का दुख। का दुख। वो मेरे अशार का। बहुत अच्छा जी, बहुत खूबसूरत जी, बहुत शुक्रिया मोहतरम खुर्शीद राज साहब कि आप तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। तो अब हम आगे चलते हैं, फिर से हिंदुस्तान का रुख करते हैं। हिंदुस्तान के शहर दिल्ली से हमारे साथ शामिल हैं मोहतरमा डॉक्टर, हमारी मेहमान एजाज मोहतरमा डॉक्टर सरिता जैन साहिबा, और बहुत सी अदबी तंजीमों से वाबस्ता हैं, उनकी सरबराही करती हैं, बहुत से मुशायरे खुद मुनक्कद करवाती हैं, अदबी और सोशल कामों के लिए खुद को वक्त किए रखती हैं। उनकी शायरी में नज़्में, गीत, दोहे शामिल हैं और हिंदुस्तान के सरकारी टीवी रेडियो पर प्रोग्राम मुनक्कद करती हैं, और इसी तरह हिंदुस्तान के तूल अर्ज़ में मुशायरों की जान है। तो दावत कलाम है मोहतरमा डॉक्टर सरिता जैन साहिबा, तशरीफ लाएं। आप सभी को आदाब पेश करती हूँ और डॉक्टर मुनव्वर कंडे साहब का खास तौर से शुक्रिया अदा करती हूँ, इतनी खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनाया और मेहमान खुसूसी बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी दावत कबूल करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।
सभी शोरा इकराम ने बहुत खूबसूरत अभी कलाम पढ़ा और बहुत खूबसूरत महफिल सजी और सबने बहुत अच्छा यहाँ से पढ़ा जी। और सदर मोहतरम की इजाजत से जी जी कलाम पेश करती हूँ। सदर मोहतरम की इजाजत से जी जी अता कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तरन्नुम से नहीं गजल के चंद अशार देखिएगा। इश्क का पैगाम, बहुत बहुत मतलब सम्माद करें। इश्क का पैगाम होकर जी रहे हैं, इश्क का पैगाम होकर जी रहे हैं, हम किसी के नाम होकर जी रहे हैं। हम किसी के नाम होकर जी रहे हैं। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया कि इश्क का पैगाम होकर जी रहे हैं, हम किसी के नाम होकर जी रहे हैं। और शेर देखिए कि खास होना आपकी तकदीर में था, खास होना आपकी तकदीर में था, हम तो बिल्कुल आम होकर जी रहे हैं। हम तो बिल्कुल आम तो बिल्कुल आम होकर जी रहे हैं। और शेर है कि नारियों में ढूंढते हैं लोग सीता, नारियों में ढूंढते हैं लोग सीता, खुद कहाँ वो राम होकर जी रहे हैं। कहाँ वो राम होकर जी रहे हैं। क्या कहने, नारियों में ढूंढते हैं लोग सीता, खुद कहाँ वो राम होकर जी रहे हैं। और मुफलिसी ने तोड़ डाली हैं अनाएं, मुफलिसी ने तोड़ डाली हैं अनाएं, कुछ बदन नीलाम होकर जी रहे हैं, कुछ बदन नीलाम होकर जी रहे हैं। और अपने बच्चे तक नहीं पढ़ते हैं जिसको, अपने बच्चे तक नहीं पढ़ते हैं जिसको, हम वही पैगाम होकर जी रहे हैं। बहुत अच्छा, पैगाम होकर जी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गजल के चंद अशार और मतलब समाप्त करें कि जान दे दूं मैं उसकी खुशी के लिए, जान दे दूं मैं उसकी खुशी के लिए, क्या यही शर्त है दोस्ती के लिए, यही शर्त है दोस्ती के लिए, कि जान दे दूं मैं उसकी खुशी के लिए, क्या यही शर्त है दोस्ती के लिए। और जिसने खुशबू से महरूम रखा मुझे, जिसने खुशबू से महरूम रखा मुझे, फूल चुनती रही मैं उसी के लिए, चुनती रही मैं उसी के लिए। दोबारा पढ़े शरीय। जिसने खुशबू से महरूम रखा मुझे, जिसने खुशबू से महरूम रखा मुझे, फूल चुनती रही मैं उसी के लिए, फूल चुनती रही मैं उसी के लिए। और उसकी याद उसके गम उसके जुल्मों सितम, उसकी याद उसके गम उसके जुल्मों सितम, पूरा सामान है खुदकुशी के लिए, सामान है खुदकुशी के लिए। उसकी याद उसके गम उसके जुल्मों सितम, पूरा सामान है खुदकुशी के लिए। बहुत बेसाख्ता शेर कहती हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। पूरा सामान है खुदकुशी के लिए। और शायरी सिर्फ लफ्जों का करतब नहीं, शायरी सिर्फ लफ्जों का करतब नहीं, एक तड़प चाहिए शायरी के लिए, चाहिए शायरी के लिए। शायरी फिर से कहें ये गहरी बात कही। शायरी सिर्फ लफ्जों का करतब नहीं, तड़प चाहिए शायरी के लिए। और हर कदम पर खुदाओं की भरमार है, हर कदम पर खुदाओं की भरमार है, सच्ची बात कह दी वाह, कि हर कदम पर खुदाओं की भरमार है, सर झुकाऊं कहाँ बंदगी के लिए। क्या कहने, क्या कमाल कर दिया आपने, क्या शेर आपने निकाले हैं, कमाल करती हैं। दोबारा पढ़ दें, दोबारा पढ़ दें। जिंदाबाद। कि हर कदम पर खुदाओं की भरमार है, क्या बात है, हर कदम पर खुदाओं की भरमार है, सर झुकाऊं कहाँ बंदगी के लिए, सर झुकाऊं कहाँ बंदगी के लिए। बहुत शुक्रिया। एक नई गजल, ताजा गजल की कुछ अशार फिर इजाजत।
कि मंसूब हो गए जो तेरे आस्था के साथ, मंसूब हो गए जो तेरे आस्थान के साथ, करते हैं रोज गुफ्तगू बरके तपा के साथ, करते हैं रोज गुफ्तगू बरके तपा के साथ, करते हैं रोज गुफ्तगू बरके तपा के साथ। और उसने सुनाए मीर के अशआर एक दिन, उसने सुनाए मीर के अशआर एक दिन, फिर मुझको इश्क हो गया उर्दू जुबां के साथ, मुझको इश्क हो गया, उसने सुनाए मीर के अशआर एक दिन, फिर मुझको इश्क हो गया उर्दू जुबां के साथ। बहुत प्यारा शेर है, बहुत प्यारा। मुझको इश्क हो गया उर्दू जुबां के साथ। शायद कि अब उजालों का आ जाए इनकलाब, शायद कि अब उजालों का आ जाए इनकलाब, जुगनू नजर तो आए हैं कुछ कहकशा के साथ, नजर तो आए हैं कहकशा के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। कि किरदार में भी खुशबू है उसके अम्ल में भी, किरदार में भी खुशबू है उसके अम्ल में भी, फूलों भरी दुकान है उसके मका के पास। क्या कहने हैं, मका के पास, उसके मकान के साथ दुकान है खूबसूरत। मजनू की एक दुकान है उसके मकान। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत लुत्फ आया, बहुत अच्छा कलाम, बहुत मजा आया। और आपका है उसका भी जवाब नहीं, आपने बहुत बेसाख्तगी से शेर कहे, बहुत बिल्कुल कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया बहुत सर, बहुत शुक्रिया खूबसूरत। आपने महफिल को महका दिया है माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी शायरी, बहुत उम्दा। बहुत बहुत शुक्रिया, अब हम तहे दिल से शुक्रिया। जीती रहे आप, जीती रहे, खुश रहे हमेशा। शुक्रिया सर। हिंदुस्तान से अब हम कनाडा में आते हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत की मालिक शायरा को मैं दावत कलाम देना चाह रहा हूँ। आपके वालिद मोहतरम डॉक्टर थे और वालदा शायर थी, और इस तरह शायरी आपको विरसे में मिली। मगर आपने सहाफत में अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद सहाफती जिंदगी में कदम रखा, और बड़े बड़े जो नामवर शख्सियात थी उनके इंटरव्यूज करने का आपको ये एजाज मिला। और मेरी मुराद है मोहतरमा फातिमा जहरा जबीन साहिबा। आपने लेडी डायना का भी इंटरव्यू किया, और भी बहुत से जो सरवाए ममालिक थे उनका भी। तो शायरी में आपने गजलें भी लिखी, मगर ज्यादातर नसर पारे, जिन्हें नसरी नज़में कहा जाता है, वो ज्यादातर आपने लिखी हैं। और मैं ज्यादा आपके और उनके दरमियान हायल नहीं होना चाहता, तारफ तो बहुत लंबा है, और वक्त की मुनासबत से मैं यही अर्ज करता हूँ। तो दावत कलाम है मोहतरमा फातिमा जहरा जबीन साहिबा, तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा आपने तारुफ करवा दिया, जितनी कि मैं उसकी मुस्तहक नहीं थी। लेकिन मेरे दोनों जो वालिदैन, अम्मी और अब्बा, दोनों डॉक्टर थे, और मेरी वालिदा बहुत अच्छी शायरा, बहुत अच्छी नसर निगार भी थी। तो बस थोड़ी सी ये तस्दीक करनी थी। बहुत शुक्रिया आपका। एक गजल सुना देती, क्योंकि अब गजल का ही माहौल चल रहा है, तो गजल ही सुना देती हूँ, वरना तो मैं नज़्म सुनाती हूँ। आपकी इजाजत हो, साहिब सदर की इजाजत हो, तो तरन्नुम के साथ सुना दूं? जी जरूर, और क्या चाहिए, तरन्नुम से सुनाइए। और आप ये देखिए कि आपके जो पेरेंट्स डॉक्टर्स थे और फिर आपकी वालिदा मोहतरमा शायरा थी, तो आपको अगर खून में ये कुव्वत मिली है, तो आपने जिस तरह आपके पेरेंट्स इलाज करते रहे मुआशरे के, तो आपने सहाफत का इंतखाब किया कि आप लोगों के जहनों का इलाज कर सकें। बिल्कुल, मैंने किया था। मेरे वालिदैन तो वालिद की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनती, लेकिन मैंने उसका इंतखाब किया। थोड़ा सा अगर मैं पीछे चले जाऊं तो मेरे नाना और नानी भी डॉक्टर, फिजिशियन और सर्जन थे, और दोनों बहुत अच्छे शायर थे। लेकिन एक दयानतदार सहाफी जो होता है, उसका मर्तबा भी डॉक्टर से कम नहीं होता। शुक्रिया, मोहब्बत आपकी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी इजाजत से गजल हाजिर है। इरशाद कीजिए। पुरानी है, लेकिन आप सिवाय दरख्शा के किसी और ने नहीं सुनी होगी।
कोई बात नहीं, सुनाइए, आप सुनाइए। कुछ इस तरह मेहरबान हो चला है, वो कुछ इस तरह मेहरबान हो चला है, यकीने मोहब्बत गुमा हो चला है, वो कुछ इस तरह मेहरबान हो चला है। हुआ वक़्फ़ रुसवाई जब से ज़माना, हुआ वक़्फ़ रुसवाई जब से ज़माना, मेरा वाक़या दास्तां हो चला है, मेरा वाक़या दास्तां हो चला है। है गुलची के हाथों में नज़्मे चमन क्या, है गुलची के हाथों में नज़्मे चमन क्या, बहारों का मौसम ख़िज़ा हो बहारों का मौसम, बहारों का मौसम ख़िज़ा हो चला है। बहुत अच्छा फातिमा, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। हमें जिंदगी का असर कोई देखे, हमें जिंदगी का असर कोई देखे, मोहब्बत का शोला धुआं हो चला, बहुत खूबसूरत, क्या कहने, बहुत अच्छे। ऐसी पड़ी नींद की मुझको आदत, कुछ ऐसी पड़ी नींद की मुझको आदत, मेरा ख्वाब ख्वाबे गिरा हो, मेरा ख्वाब ख्वाबे गिरा हो चला है। मक्का हाजिर है। कभी सांस लेना भी अब इस जहां में, जब भी सांस लेना भी अब इस जहां में, हमारे लिए इम्तिहान हो जी, इम्तिहान हो चला, क्या बात है, इम्तिहान हो चला है, बहुत उम्दा, यकीने मोहब्बत धुआं हो चला है। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत उम्दा शायरी, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत कलाम, बहुत शुक्रिया मोहतरमा फातिमा ज़हरा जबीन साहिबा, बहुत ही खूबसूरत तरन्नुम और बहुत खूबसूरत कलाम। महफिल को आपने हमारे क्लाइमैक्स पे पहुंचा दिया आपने। आपने शिफा दी हम लोगों के तड़पते दिलों को। ये तो साहिब सदर का मतलब उसका नया नुस्खा बना दिया उन्होंने, साइन मैंने कर दिया। क्या आपने जो है आपकी शायरी में शिफा है। ये अब हम आगे चलते हैं तो हमारे साथ एक और खूबसूरत तरन्नुम की हामिल शायरा हमारी अगली मेहमान एजाज हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने एमए इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की और रॉयल ओंटारियो म्यूजियम की लाइफ मेंबरशिप, ऑनररी मेंबरशिप है उनके पास। अल-मनाई इंटरनेशनल कनाडा एक मैगजीन जो कि उर्दू और अंग्रेजी में 2 ज़बानों में है, उसकी फाउंडर हैं और पब्लिशर हैं। और आपके, अगर मैं गलत हूं तो मुझे तस्दीक कर दें कि 4 मजमूए छप चुके हैं, मुझे सही नहीं। बहुत ही खूबसूरत कलाम कहती हैं, मेरी मुराद है मोहतरमा दरख्शां सिद्दीकी साहिबा, अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। दावत कलाम जी, बहुत शुक्रिया। वैसे मेरे 3 मजमू हैं, अभी चौथे पे काम हो रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। काम हो रहा है तो बस आ गया, इसका मतलब है कि बस। साहिब सदर की इजाज़त से एक गजल पेश कर देती हूँ। जी, इरशाद फरमाइए। जी, अता हो। इश्क में अश्क जो बहाती हूँ, इश्क में अश्क जो बहाती हूँ,
जान कर मैं फरेब खाती हूँ। क्या कहने तेरा इश्क में अश्क जो बहाती हूँ, वाह वाह वाह, बहुत खूब। जान कर मैं फरेब खाती हूँ। फरेब खाती आईना दिल के रूबरू रख कर, आईना दिल के रूबरू रख कर उसकी तस्वीर मैं सजाती हूँ। आईना दिल के रूबरू रख कर, आईना दिल के रूबरू रख कर उसकी तस्वीर मैं सजाती हूँ। शुक्र करती हूँ शायरी से जब, शुक्र करती हूँ शायरी से जब बज़्म शेरो अदब में जाती हूँ। शुक्रिया। शुक्र करती हूँ शायरी से जब बज़्म शेरो अदब में जाती हूँ। शेर से एक मंजर कशी भी हो जिसमें, एक मंजर कशी भी हो जिसमें शेर ऐसे भी लिख के लाती हूँ। क्या कहने, बहुत अच्छा शेर है। एक मंजर कशी भी हो जिसमें, एक मंजर कशी भी हो जिसमें शेर ऐसे भी लिख के लाती हूँ। और शेर देखिए, ज़हन भी शायरी कहो जिस दम, ज़हन भी शायरी कहो जिस दम उसी लम्हे कलम उठाती हूँ। ज़हन भी शायरी कहो जिस दम, ज़हन भी शायरी कहो जिस दम उसी लम्हे कलम उठाती हूँ। शेर अर्ज किया है, खूबसूरत है जिंदगी मेरी, खूबसूरत है जिंदगी मेरी, रंजो गम से नफाक खाती हूँ। खूबसूरत है जिंदगी मेरी, खूबसूरत है जिंदगी मेरी, रंजो गम से नखाफ खाती हूँ। और मक्ता पेश है, दिल दरख्शां है अपने सीने में, दिल दरख्शां है अपने सीने में, जिंदगी भर खुशी लुटाती हूँ। बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दिल दरख्शां है अपने सीने में, दिल दरख्शां है अपने सीने में, जिंदगी भर खुशी लुटाती हूँ। इश्क में अश्क जो बहाती हूँ, इश्क में अश्क जो बहाती हूँ, जानकर मैं फरेब खाती हूँ। खुद जान कर फरेब खाती, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर इजाजत हो और वक्त हो तो एक छोटी सी बहर में गजल पेश कर दूं। तरन्नुम से, तरन्नुम से। अच्छा, बहुत शुक्रिया। तो गजल पेश है, हमसे अब यूं मिला करे कोई, हमसे अब यूं मिला करे कोई, किस्से गम सुना करे कोई, किस्से गम सुना करे कोई। शेर से, लज़्ज़ते गम से आशना हूँ मैं, लज़्ज़ते गम से आशना हूँ मैं, दर्द की इंतहा करे कोई। बहुत शुक्रिया। लज़्ज़ते गम से आशना हूँ मैं, लज़्ज़ते गम से आशना हूँ मैं, दर्द की इंतहा करे कोई। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। शेर से, देखे इल्जाम बेवफाई का, देखे इल्जाम बेवफाई का, यूं न रुसवा किया करे कोई। क्या करने, देखे इल्जाम बेवफाई का, देखे इल्जाम बेवफाई का, यूं न रुसवा किया करे कोई। शेर हाजिर है, जुर्म उसका सजा मिले मुझको, जुर्म उसका सजा मिले मुझको, यूं भला क्यों जिया करे कोई। ये जमीन दिल की है जमीन इसे, ये जमीन दिल की है जमीन इसे, आसमां ही कहा करे कोई।
ये जमीन दिल की है जमीन इसे, ये जमीन दिल की है जमीन इसे, आसमाई कहा करे कोई। शेर देखिएगा, रोशनी जो हर एक को बख्शे, रोशनी जो हर एक को बख्शे, ऐसा दीपक जला करे कोई। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, दोबारा शेर पढ़े। जो हर एक को बख्शे, रोशनी जो हर एक को बख्शे, ऐसा दीपक जला करे कोई। और शेर फातिमा तुम्हारी नजर है। बहुत शुक्रिया। तुझको सुनकर ये चाहता है दिल, तुझको सुनकर ये चाहता है दिल, तुझी को बस सुना करे। तुझी को सुनकर ये चाहता है दिल, तुझको सुनकर ये चाहता है दिल, तुझी को बस सुना करे कोई। तुझी को बस सुना करे कोई। और मख्ता पेश है, दरख्शां जहान उल्फत में, ए दरख्शां जहान उल्फत में, क्यों किसी से गिला करे कोई। ए दरख्शां जहान उल्फत में, ए दरख्शां जहान उल्फत में, क्यों किसी से गिला करे कोई। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। हमसे अब यूं मिला करे कोई, हमसे अब यूं मिला करे कोई, किस्से हम सुना करे कोई। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपको। आपको तरन्नुम में भी सुना, बहुत अच्छा लगा, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अशार आपने, बहुत इनायत, बहुत नवाजिश, बहुत खूबसूरत शायरी और बहुत ही खूबसूरत तरन्नुम। तो अभी हम सुन रहे थे मोहतरमा दरख्शां सिद्दीकी साहिबा, और अब हमारी मेहमान खुसूसी एक अजीम अदबी घराने से ताल्लुक है। शायरी की तरबियत आपको अपने घर से ही मिली, और आपके वालिद मोहतरम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के ज़ाती मालिज थे, और शायरी के अलावा आपने मुसव्वरी में भी कमाल हासिल किया, और आपकी शायरी में गुलाबों, रंग, फूल और तितलियां खास जगह पाती हैं। अंदाज़े बयां बहुत ही खूबसूरत और दिल मोह लेने वाला है। और मैं 2-3 शेर अर्ज करता हूँ कि लहू की आंच में वहमो गुमा जलाती हूँ, तेरे यकीन की लौ ऐसे आजमाती हूँ, तेरी जुदाई का ताना न दे सके दुनिया, मैं जब भी रोने लगूं खिल के मुस्कुराती हूँ, समेटती हूँ मैं फिर रोज किरची किरची बदन, मैं आईने की तरह रोज टूट जाती हूँ। दावत कलाम है मोहतरमा यास्मीन बुखारी साहिबा। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की महफिल में तो इतनी रौनक है और इतने अच्छे अच्छे अशार कहे गए हैं कि बहुत ही सुकून भी आया और अच्छा भी लगा। बेइंतहा मज़ा आया है आज, और कारवान शेर सुखन जारी रहे, सलामत रहे। जो हमें आप बुला लेते हैं, इतनी खुशी होती है, इतना अच्छा लगता है कि आप लोगों को मिलके इतना अच्छा लगता है। अब तो एक दोस्ती सी हो गई है, हर एक का चेहरा अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, और इतने आला अशार सुने तो और भी अच्छा लगता है। और मैं एक शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो अवार्ड दिया था उसका बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरनेशनल समंदर इंटरनेशनल को, सारों को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत मिला नहीं अभी तक, आ जाएगा इंशाल्लाह, तो पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो सादी सदर की इजाज़त से मैं एक गज़ल पेश करती हूँ। ये मेरी एक गज़ल तो आपने थोड़ी सी सुन ही ली है उनसे, हमीदी साहब। आप अदा कीजिए, बल्कि मैं ये आपसे कहने वाला था कि जो अशार अभी हमीदी साहब ने सुनाए हैं, अगर मुमकिन हो आपके पास गज़ल मौजूद हो तो ये सारी गज़ल भी आप सुनाए तो हमें अच्छा लगेगा।
जी बिल्कुल। एक इनकी फूलों वाली भी है वो, जिसमें फूलों रंगों का जिक्र है, वो भी अगर हाँ वो भी चाहिए हो तो। जी ठीक है जी। चलो मैं इसी से शुरू करती हूँ, इस गजल से जो हमीदी साहब ने चंद अशार सुनाए। लहू की आंच में वहमो गुमा जलाती हूँ, लहू की आंच में वहमो गुमा जलाती हूँ, तेरे यकीन की लौ ऐसे आजमाती हूँ। क्या कहने, क्या खूबसूरत शेर है। लहू की आंच में वहमो गुमा जलाती हूँ, तेरे यकीन की लौ ऐसे आजमाती हूँ। तेरी जुदाई का ताना न दे सके दुनिया, तेरी जुदाई का ताना न दे सके दुनिया, मैं जब भी रोने लगूं खुल के मुस्कुराती हूँ। बहुत खूब। समेटती हूँ मैं फिर रोज किरची किरची बदन, समेटती हूँ मैं रोज किरची किरची बदन, मैं आईने की तरह रोज टूट जाती हूँ। क्या कहने। शुक्रिया। कभी कभी मेरे बुझने पे तोहमतें न लगा, कभी कभी मेरे बुझने पे तोहमतें न लगा, फसीले हिज्र की तलखी पे जगमगाती हूँ। मिला के तेल में अपने जिगर का ताजा लहू, मिला के तेल में अपने जिगर का ताजा लहू, मैं जलते बुझते चरागों में फैल जाती हूँ। दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए। जला के तेल में अपने जिगर का ताजा लहू, मैं जलते बुझते चरागों में फैल जाती हूँ। और एक शेर सुनिए। मेरा वजूद है इस कायनात में पुरकार, मेरा वजूद है इस कायनात में पुरकार, ज़मीं के दोष पे मैं आसमां घुमाती हूँ। ज़मीं के दोष पे मैं आसमां घुमाती हूँ, अगरचे जख्म की सूरत हूँ यास्मीन मगर, अगरचे जख्म की सूरत हूँ यास्मीन मगर, मैं खुद भी हंसती हूँ लोगों को भी हंसाती हूँ। लोगों को भी हंसाती हूँ। बहुत खूब। अगरचे जख्म की सूरत हूँ यास्मीन मगर, मैं खुद भी हंसती हूँ लोगों को भी हंसाती हूँ। लहू की आंच में रहमो गुमा जलाती हूँ, तेरे यकीन की लौ ऐसे आजमाती हूँ। बहुत शुक्रिया। एक गजल और सुनाती हूँ जी, आपकी पेश खिदमत है। जितनी भी देर तुमसे मेरी दोस्ती रही, जितनी भी देर तुमसे मेरी दोस्ती रही, मेरी ही जात मुझको कहीं ढूंढती रही। मेरी भी देर तुमसे मेरी ही जात मुझको कहीं ढूंढती रही, चुपचाप आसमान उसे देखता रहा, चुपचाप आसमान उसे देखता रहा, अपने ही जख्म खुद ही जमीन चाटती रही। ये शेर दोबारा पढ़िए। चुपचाप आसमान उसे देखता रहा, चुपचाप आसमान उसे देखता रहा, अपने ही जख्म खुद ही जमी चाटती रही। बहुत उम्दा शेर। एक ख्वाब की तलाश में मैं सो गई मगर, एक ख्वाब की तलाश में मैं सो गई मगर, एक चीज मुझ में देर तलक जागती रही। दोबारा पढ़िए। जी जरूर। एक ख्वाब की तलाश में मैं सो गई मगर, एक चीज मुझ में देर तलक जागती रही। और ये शेर सुनिए। आया तेरा ख्याल अमावस की रात में, आया तेरा ख्याल अमावस की रात। वाह वाह, क्या कहने। आया तेरा ख्याल अमावस की रात में, आंगन में मेरे ताबा सहर चांदनी रही। क्या खूबसूरत शेर है। दोबारा पढ़ें, क्या मंजर कशी की है आपने। इस शेर को भी दोबारा अता कीजिए।
جی آیا تیرا خیال اماوس کی رات میں آنگن میں میرے تابہ سحر چاندنی رہی. اور شعر سنیے. دریا میری تلاش میں آ کر پلٹ گیا. دریا میری تلاش میں آ کر پلٹ گیا. صحرا کی ریت مجھ کو صدا ڈھونڈتی رہی. دریا میری تلاش میں آ کر پلٹ گیا. صحرا کی ریت مجھ کو صدا ڈھونڈتی رہی. شکریہ جی. اور آخری شعر ہے. کچھ دیر رک کے چل دیا یادوں کا قافلہ. کچھ دیر رک کے چل دیا یادوں کا قافلہ. اور یاسمین رخت سفر باندھتی رہی. دوبارہ پڑھتے ہیں. کچھ دیر رک کے چل دیا یادوں کا قافلہ اور یاسمین رخت سفر باندھتی رہی. کتنی بھی دیر تم سے میری دوستی رہی. میری ہی ذات مجھ کو کہیں ڈھونڈتی رہی. آپ آسمان اسے دیکھتا رہا. اپنے ہی زخم خود ہی زمین چاٹتی رہی. بہت اعلیٰ کلام. بہت خوبصورت. بہت شاندار. بہت خوبصورت. ایک غزل اور پیش خدمت اگر ٹائم مل جا سکے. بالکل جی عطا کیجیے. ضرور ضرور پیش. آپ کے لیے بیٹھے ہم. شکریہ جی. عجب سا روز منظر دیکھتی ہوں. روز منظر دیکھتی ہوں. میں قطرے میں سمندر دیکھتی ہوں. میں قطرے میں سمندر دیکھتی ہوں. عجب سا روز منظر دیکھتی ہوں. میں قطرے میں سمندر دیکھتی ہوں. چمکتا ہے وہ بن کر ماہ تاباں. چمکتا ہے وہ بن کر ماہ تاباں جسے میں دل کے اندر دیکھتی ہوں. جسے میں دل کے اندر دیکھتی ہوں. کیا کہنے. بہت باریک بھی ہیں میری نظریں. بہت باریک بھی ہیں میری نظریں. تجھے ہر شے کے اندر دیکھتی ہوں. بہت باریک بھی ہیں میری نظریں. تجھے ہر شے کے اندر دیکھتی ہوں. شعر سنیے. اسے مجھ سے محبت کس قدر ہے. اسے مجھ سے محبت کس قدر ہے. ذرا اس سے بچھڑ کر دیکھتی ہوں. کیا خوبصورت شعر کہا ہے آپ نے. امتحان میں ڈال دیا. کیسے جذبات کی ترجمانی کی ہے. اسے مجھ سے محبت کس قدر ہے. ذرا اس سے مجھ سے محبت کس قدر ہے. ذرا اس سے بچھڑ کر دے. وہی ہے خواب جو صدیوں پرانا. وہی ہے خواب جو صدیوں پرانا. اسے اب بھی برابر دیکھتی ہوں. اسے اب بھی برابر دیکھتی ہوں. کیا کیفیت لائیے آپ. واہ بہت خوب. مختار سے. لطافت اس میں کتنی یاسمی ہے. لطافت اس میں کتنی یاسمی ہے. گلوں کو اس سے کم تر دیکھتی ہوں. لطافت اس میں کتنی یاسمی ہے. گلوں کو اس سے کم تر دیکھتی ہوں. عجب سا روز منظر دیکھتی ہوں. میں قطرے میں سمندر دیکھتی ہوں. چمکتا ہے وہ بن کر ماہ تاباں جسے میں دل کے اندر دیکھتی ہوں. بہت ہی خوبصورت کلام. بہت شاندار. اور محفل کو آپ نے اب ایک اور نئے سنگ میل پہ لے گئی ہیں. اب چلتے ہیں آگے. ہمارے وصل سے مہکا ہوا تھا ستارہ رات کا جاگا ہوا تھا. یہاں پر راستہ لکھنا منع ہے کسی دیوار پر لکھا ہوا تھا. تو شمع محفل اب ہمارے صدر محترم کے آگے ہے اور یہ محفل ہم نے سجائی. تو ہم ہمتن گوش ہیں. آپ اپنے کلام سے نوازیں اور ہم سن رہے ہیں. بہت بہت شکریہ حمیدی صاحب. آپ کا جو مشاعرہ ہوتا ہے, آپ جو محفل سجاتے ہیں, وہ ہمیشہ کرشماتی محفل ہوتی ہے اور اس میں بہت سے رنگ اور بہت سے جلوے اور کیا روشن آرائی ہوتی ہے محفل میں. اور آپ جس انداز سے, جس سادگی سے, جس محبت سے اور جس خلوص سے محفل کا آغاز کرتے ہیں,
तो कनाडा से आप सारी दुनिया को अपने दिल में समो लेते हैं जी, सब लोग आपके मद्दाह हो जाते हैं, आपकी मोहब्बत में के गिरफ्तार हो जाते हैं, और उन असीरों में मैं भी हूँ। और इसीलिए मैं आपकी जो महफिल है, जब भी मुझे याद किया मैंने आपके हुक्म की तामील की, और आज जब मैं तमाम शोरा का बेहतरीन कलाम सुन रहा था, तमाम शोरा ने अपने अपनी बिसात में बेहतरीन कलाम पेश किया, और इतना खूबसूरत कलाम पेश किया कि दिल अभी तक उनके अशार की खुशबुओं में रचा हुआ है। और मेरे जहन में बहुत सारी कैफियत जो हैं वारिद हुई हैं, और इस सारी वारदात में मुझे अब ये नहीं समझ आ रही कि मैं अपना कलाम कहाँ से शुरू करूँ। और मैं इतना एंजॉय किया मैंने महफिल को, और कहाँ इंडिया से और कहाँ पाकिस्तान से, जर्मनी से, कनाडा से, इंग्लैंड से, पूरी दुनिया से इतनी खूबसूरत शायरी सुनने को मिली है कि, और उससे बहुत महमेज हुआ हूँ मैं। और मुझे ऐसे लगता है कि आज ही सुबह, जब कल सुबह तुलू होगा, सूरज तुलू होगा, तो मुझे ताज़ा गजल कहने का मौका मिल जाएगा। बहुत बहुत लुत्फ आया आपकी इस महफिल में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कारवान शेर व सुखन हमेशा बहुत बेहतरीन महाफिल का इनकाद करते हैं। मेरे हाथ में इस वक्त किताब है पानियों से कह देना। तो मैंने आज आपकी इस महफिल से जो हासिल किया है, अपने जहन में जो ख्यालात मेरे जहन में जिन्होंने जन्म लिया है, मैं उनका इजहार करना चाहता हूँ और इस किताब का सहारा लेता हूँ, पानियों से कह देना। हमें मालूम है कि खुदावंद ताला की जात ने हमें मिट्टी और पानी से तख्लीक किया है। हम ये भी जानते हैं कि मिट्टी की जो जरखेजी है, बज़ाहिर मिट्टी अंधेरी है, मिट्टी के अंदर तारीकी है, और उस तारीकी से किस तरह से रंग फूटते हैं, किस तरह से शगुफे निकलते हैं, किस तरह से आप देखें नई नई कोंपलें खिलखिला के निकलती हैं। तो ये फितरत ने मिट्टी के अंदर जो तासीर रखी है, उस तासीर का इजहार हमें रंगों की शक्ल में मिलता है, हमें बागात में सजे हुए फूलों की शक्ल में मिलता है। हमें आप देखिए कि एक ऐसी कैफियत से हम दो चार रहते हैं कि मिट्टी की खुशबू हमें हमेशा अपने हिसार में लिए रखती है, लेकिन उस जो इंसान का वजूद है उसमें मिट्टी के साथ उससे जो पानी से गूंदा गया है, वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। कि अगर हमारी ज़मीन को देखा जाए तो उसके 3 हिस्से से ज़्यादा पानी है और 1 हिस्सा जो है वो उसमें मिट्टी का है। तो 3 हिस्से से ज़्यादा पानी की यही निस्बत इंसानी वजूद के अंदर भी इसी निस्बत के साथ पानी मौजूद है जी। अब वो पानी की करिश्माती दुनिया है कि आप ये देखिए कि कायनात में जितना भी पानी है, उसके जितने भी अरब हा कतरे हैं, उनमें से कोई भी कतरा क़यामत तक कभी ज़ाया नहीं होगा, और तमाम कतरात एक दूसरे के साथ एक रिश्ता बना के एक दूसरे के साथ मुतमस्सिक हैं। और एक ऐसा रिश्ता है कि अगर पानी कोई भी शक्ल इख्तियार कर ले, भाप की शक्ल में उड़ जाए या आसमान की बुलंदियों पर बादलों में मौजूद हो या ज़मीन की गहराइयों में उसका ज़ख़ीरा हो, तो आप ये देखेंगे कि पानी चाहे बर्फ की शक्ल में जम जाए, चाहे बर्फबारी की शक्ल में हो, तो पानी की ये तमाम रवैये इंसानी जिस्म के अंदर भी बदरजाए उत्तम मौजूद होते हैं। तो मिट्टी और पानी के मिलाप ने हजरत इंसान की जो तख्लीक में अहम किरदार अदा किया है, उसमें कहते हैं जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी। तो पानी ने वही किरदार अदा किया है हमारी तख्लीक में, और उसी की बदौलत हम अशरफुल मखलूकात हैं। बहुत से ख्यालात का तसादम हो रहा है और ये गुफ्तगू काफ़ी तवील हो सकती है, लेकिन मैं इतनी गुजारिश करूँगा कि अगर हम अपने वजूद के पानियों को साफ और शफाफ रखें, उनको आलूदा ना होने दें, तो इससे रंग फूटते हैं, इससे कौसे खुदा जन्म लेती है जी। हमारे वजूद के पानियों में अगर ठहराव आ जाए तो जहाँ पानी ठहर जाता है वो जोहड़ बन जाता है। तो हमें अपने वजूद की तहरीक को जारी और सारी रखना है।
اور ہمیں اپنے وجود کے پانیوں کو اس طرح سے شفاف رکھنا ہے کہ ہمارا ایک دوسرے سے جو رشتہ ہے اس میں ہمیں ایک دوسرے کا احساس ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہے تاکہ ہمیں کسی ایک انسان سے دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے. تو اسی کو بنیاد بناتے ہوئے میں پہلی غزل پیش کر رہا ہوں آپ سب کی خدمت میں، مگر اس سے پہلے ایک شعر سماعت فرمائیے کہ ایک زیبائی تھی تنہائی تھی یکتائی تھی. ایک زیبائی تھی تنہائی تھی یکتائی تھی، ایسے عالم میں کہیں کن کی صدا آئی تھی. ایک زیبائی تھی تنہائی تھی یکتائی تھی، ایسے عالم میں کہیں کن کی صدا آئی تھی. اور پھر اگر ایسا شعر میں نے جو اللہ کریم کی ذات کی شان میں پڑھا ہے تو مجھے نعت کے بھی چند اشعار پڑھنے دیجیے. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے درود پڑھ کے ستارے سے بات کی، پہلے درود پڑھ کے ستارے سے بات کی، پھر اس کے بعد میں نے مدینے میں رات کی. کیا بات پہلے درود پڑھ کے ستارے سے بات کی، پھر اس کے بعد میں نے مدینے میں رات کی. بے شک بس ایک نقش کف پا ہے آپ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک بس ایک نقش کف پا ہے آپ کا، نظریں جھکی ہوئی ہے جہاں کائنات کی، نظریں جھکی ہوئی ہے جہاں کائنات کی. اور میں اب اس غزل کی طرف آتا ہوں، پانیوں سے کہہ دینا. یہ پیغام تھا پانیوں سے کہہ دینا، دراصل انسانوں کے لیے کہ انسانوں کے وجود کے اندر ان کے اجسام میں پانی کی تعداد زیادہ ہے، مٹی کی کم ہے. تو ہمیں اپنے پانیوں کو شفاف رکھنا ہے تاکہ ماحول میں ایک تزکیہ نفس جو ہے اس کا عمل جاری رہے. اسی کو بنیاد بنا کر ایک غزل پیش کر رہا ہوں، اور وہ اس غزل کی تحریک بھی آپ سب کی گفتگو آپ سب کی شاعری سے مجھے ملی، تو اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا کہ تشنا روح گھٹائے ہیں، تشنا روح گھٹائے ہیں پانیوں سے کہہ دینا. پانیوں سے تشنا روح گھٹائے ہیں پانیوں سے کہہ دینا، سر پھری ہوائیں ہیں پانیوں سے کہہ دینا، سر پھری ہوائیں ہیں پانیوں سے کہہ دینا. زندگی تڑپتی ہے دشت غم کی ہیبت میں، زندگی تڑپتی ہے دشت غم کی ہیبت میں، ہر طرف بلائیں ہیں پانیوں سے کہہ دینا، ہر طرف بلائیں ہیں پانیوں سے کہہ دینا. 3 حصے پانی ہے پھر بھی روح پیاسی ہے. کیا خیال ہے، کیا تصور ہے. 3 حصے پانی ہے پھر بھی روح پیاسی ہے، خاک کی صدائیں ہیں پانیوں سے خاک کی صدائیں ہیں پانیوں سے کہہ دینا. پیاس سے بلکتے ہیں آج بھی جگر گوشے، پیاس سے بلکتے ہیں آج بھی جگر گوشے، دل گرفتہ مائیں ہیں پانیوں سے دل گرفتہ مائیں ہیں پانیوں سے کہہ دینا. خون کتنا سستا ہے رنگ کتنے پھیکے ہیں، خون کتنا سستا ہے رنگ کتنے پھیکے ہیں، شہر سائے سائے ہیں پانیوں سے کہہ دینا. شہر سائے سائے ہیں پانیوں سے کہہ دینا. ایک سے ہیں تم جیسے آدمی مگر زاہد، ایک سے ہیں تم جیسے آدمی مگر زاہد، سارے دائیں بائیں ہیں پانیوں سے کہہ دینا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اس غزل کو بہت
सब्र के साथ इस गजल को समाअत फरमाया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक और गजल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि मेरे घर रात करना चाहते हैं, मेरे घर रात करना चाहते हैं, सितारे बात करना चाहते हैं, मेरे घर रात करना चाहते हैं, सितारे बात करना चाहते हैं, मैं अपने साथ वो सब कर रहा हूँ, मैं अपने साथ वो सब कर रहा हूँ कि जो हालात करना चाहते हैं, मैं अपने साथ वो सब कर रहा हूँ कि जो हालात करना चाहते हैं, तुम्हारे साथ इजहारे मोहब्बत, मेरी क्या मजाल है कि मैं इजहारे मोहब्बत करूं तुम्हारे साथ। जवाब देखिए कैसा पेश करने की कोशिश की है कि तुम्हारे साथ इजहारे मोहब्बत मेरे जज्बात करना चाहते हैं, तुम्हारे साथ इजहारे मोहब्बत मेरे जज्बात करना चाहते हैं कि मेरे साथ मेरे दोस्त जाहिद यकीनन हाथ करना चाहते हैं। क्या ख्याल है, क्या यकीनन हाथ करना चाहते हैं, हाथ करना चाहते हैं, सितारे बात करना चाहते हैं। सितारे बात करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मिजाज पर गरा न गुजरे तो एक और गजल आप के मराहिल से गुजर कर यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो अब आपका सब्र और तहम्मुल का इम्तिहान है। नहीं ख्वाब की तजदीद में है, फिर कोई आंख किसी ख्वाब की तजदीद में है, फिर दिले सोख्ता ताबीर की ताईद में है, दोबारा पढ़िए, बहुत अच्छा है। फिर कोई आंख किसी ख्वाब की तजदीद में है, फिर दिले सोख्ता ताबीर की ताईद में है, दास्ताने गमे हस्ती को शबें चाहिए है, दास्ताने गमे हस्ती को शबें चाहिए हैं, ये मेरा अश्क मेरे दर्द की तमहीद में है, ये मेरा अश्क मेरे दास्ताने गमे हस्ती को शबें चाहिए हैं, ये मेरा अश्क मेरे दर्द की तमहीद में है, ये मेरी आंख तेरी राह में बुझती हुई राख, ये मेरी आंख तेरी राह में बुझती हुई राख, ये अलाव तेरे लौट आने की उम्मीद में है, अलाव तेरे लौट आने की उम्मीद में है। मैंने एक ख्वाब सुनाने की जसारत की थी, मैंने एक ख्वाब सुनाने की जसारत की थी, मैंने एक ख्वाब सुनाने की जसारत की थी, हाय वो संग जनी जो तेरी तनकीद में है, मैंने ख्वाब सुनाने की जसारत की थी, हाय वो संग जनी जो तेरी तनकीद में है, और जिंदगी तेरे उजाले के लिए काफी है, जिंदगी तेरे उजाले के लिए काफी है, हाँ वही अश्क जो इस आंख की ताकीद में है, हाँ वही अश्क जो इस आंख की ताकीद में है, और उससे तो एक मेरी रात भी रोशन ना हुई। ये समाज फरमाइएगा कि उससे तो एक मेरी रात भी रोशन ना हुई, आसमां जितना उजाला तेरे खुर्शीद में है, ये फिर से पढ़िए, उससे तो एक मेरी रात भी रोशन ना हुई, आसमां जितना उजाला तेरे खुर्शीद में है, और उम्र गुजरी है मगर आज भी जाहिद शमसी, उम्र गुजरी है मगर आज भी जाहिद शमसी, अपने अजदाद के अफकार की तकलीद में है, अपने अजदाद के अफकार की तकलीद में है, कोई आंख किसी ख्वाब की तजदीद में है,
फिर दिले सोख्ता ताबीर की ताईद में है। वाह वाह। जब आपकी कुव्वत समाज जो है वो थक जाए तो मुझे बता दीजिएगा। हम नहीं थकेंगे। जी मैं उसी वक्त में आपसे इजाजत ले लूंगा। आपकी शायरी से कौन सा कोई वाकया नहीं होगा। मैं अर्ज करता हूँ जी, एक गजल और समाज फरमा लीजिए कि शबे स्याह में गरचे कहीं कहीं मैं था। इसहाक साहब ये गजल आपकी नज्र है। ये गजल जर्मनी में जितने भी अदब नवाज अहबाब रहते हैं ये उनकी नज्र है। और मैं अगर मुझसे मजीद गजलें सुनेंगे तो मैं मुख्तलिफ शहरों के नाम गजलें करता चला जाऊंगा। इसहाक साहब अर्ज किया है कि शबे स्याह में गरचे कहीं कहीं मैं था, वो जुगनुओं का कोई सिलसिला नहीं मैं था। शबे स्याह में गरचे कहीं कहीं मैं था, वो जुगनुओं का कोई सिलसिला नहीं मैं था। गुमा के बाब में एक मोड़ वो भी था जिसमें, गुमा के बाब में एक मोड़ वो भी था जिसमें यकीन तू था मगर हासिले यकीन मैं था। यकीन तू था मगर हासिले यकीन मैं था। और तुम्हारी आंख मुझे देखने से आ रही थी, तुम्हारी आंख मुझे देखने से आ रही थी। जहां से तुमने पुकारा मुझे वहीं मैं था। वाह 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 वाह, क्या ख्याल है। देखा आपने खेल की कैफियत मुलाहिजा फरमाई। तुम्हारी आंख मुझे देखने से आ रही थी, जहां से तुमने पुकारा मुझे वहीं मैं था। वो जिसकी आंखों को तुमने चिराग समझा था, वो जिसकी आंखों को तुमने चिराग समझा था। जमीने इज्ज पे वो बोरिया नशी मैं था। क्या कहने हैं। दोबारा पढ़े शेर जनाब, बहुत मोहब्बत आपकी, बहुत मोहब्बत। सलामत रहे आप सब। बहुत आला। वो जिसकी आंखों को तुमने चिराग समझा था, जमीने इज्ज पे वो बोरिया नशी मैं था। और अगरचे दोनों जुदा थे मगर करीब भी थे। अगरचे दोनों जुदा थे मगर करीब भी थे। तू आसमान अगर था तो फिर जमीन मैं था। जमीन मैं था। तू आसमान अगर था तो फिर जमीन मैं था। और मक्ता पेश खिदमत है कि जो सजदा रेज हुई जलते दश्त पर जाहिद, जो सजदा रेज हुई जलते दश्त पर जाहिद, मेरा ख्याल है शायद कि वो जबी मैं था। मेरा ख्याल है शायद वो जबी यकीनन आप थे। शबे स्याह में गरचे कहीं कहीं मैं था, जुगनुओं का कोई सिलसिला नहीं मैं था। यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं हमीदी साहब की तरफ देख रहा हूँ कि जब वो मुझे कहें, जब वो सामने अब ऐसे करें, अब ना एक आखिरी सदारती गजल सुना दें। चलिए मैं अर्ज करता हूँ। मैं आपका हुक्मनामा है, मैं अर्ज करता हूँ कि एक ख्वाब मैंने ख्वाब में देखा मरा हुआ। वाह वाह, क्या ख्याल है भाई। वाह वाह वाह। ख्वाब मैंने ख्वाब में देखा मरा हुआ, खुद को जो जिंदा देखा तो कुछ हौसला हुआ। खुद को जो मैंने ख्वाब में देखा मरा हुआ, खुद को जो जिंदा देखा तो कुछ हौसला हुआ। ए आँख, हमीदी साहब ये गजल कैनेडा के नाम है क्योंकि ये गजल है, ये कारवान शेर और सुखद के नाम है, तमाम अहबाब के नाम है जहाँ जहाँ समात कर रहे हैं। आप सबकी चमकती हुई जबीनों के नाम है, आप सबके धड़कते हुए दिलों के नाम है, आप सबके जो अदब के लिए मोहब्बत है आपके दिलों में, ये उस मोहब्बत के नाम है कि ख्वाब मैंने ख्वाब में देखा मरा हुआ, खुद को जो जिंदा देखा तो कुछ हौसला हुआ।
اے آنکھ تجھ کو دل سے میں کیسے جدا کروں، اے آنکھ تجھ کو دل سے میں کیسے جدا کروں، پانی میں آگ، آگ میں پانی ملا ہوا، پانی میں آگ، آگ میں پانی ملا ہوا ہے، اے آنکھ تجھ کو دل سے میں کیسے جدا کروں، پانی میں آگ، آگ میں پانی ملا ہوا، صد شکر اس کو دیکھ لیا ہے پھر ایک بار، صد شکر، صد شکر اس کو دیکھ لیا ہے پھر ایک بار، صد شکر میرا زخم تمنا ہرا ہوا، صد شکر میرا زخم تمنا ہرا ہوا، اور اب تک ہے یاد مجھ کو کسی بے وفا کا نام، اب تک ہے یاد مجھ کو کسی بے وفا کا نام، ایک اشک اب بھی ہے سرے مژگاں رکا ہوا، ایک اشک اب بھی ہے سرے مژگاں رکا ہوا، اور اب تک ہے، اب تک میری وفا میں جنوں خیزیاں نہیں، اب تک میری وفا میں جنوں خیزیاں نہیں، اب تک ہے میرا چاکے گریباں سلا ہوا، چاکے گریباں سلا ہوا، اب تک ہے میرا چاکے گریباں سلا ہوا، امکان تو نہیں ہے مگر جا کے دیکھ لو، امکان تو نہیں ہے مگر جا کے دیکھ لو، مل جائے شہر بھر میں کوئی جاگتا ہوا، امکان تو نہیں ہے مگر جا کے دیکھ لو، مل جائے شہر بھر میں کوئی جاگتا ہوا، دروازہ بند دیکھ کے چکرا کے گر پڑا، دروازہ بند دیکھ کے چکرا کے گر پڑا، آیا تھا اپنے گھر کی طرف دوڑتا ہوا، آیا تھا اپنے گھر کی طرف دوڑتا ہوا، دروازہ بند دیکھ کے چکرا کے گر پڑا، آیا تھا اپنے گھر کی طرف دوڑتا ہوا، اور مکتب پیش خدمت ہے کہ زاہد مجھے یقین تو ہے اپنے آپ پر، زاہد مجھے یقین تو ہے اپنے آپ پر، مل جاؤں گا میں خود کو کہیں پر پڑا ہوا، مل جاؤں گا میں خود کو کہیں پر پڑا ہوا، بہت اچھا، خواب میں نے خواب میں دیکھا مرا ہوا، خود کو جو زندہ دیکھا تو کچھ ہوا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ سب کی بہت بہت شکریہ، میں ہمیشہ نیاز مند رہوں گا، بہت بہت اعلیٰ کلام، شمس صاحب آ گیا، بہت ہی خوبصورت محفل تھی یہ، اور یقیناً ہم سب نے بہت انجوائے کیا، اور نئے نئے یادگار مشاعرہ کہلایا جا سکتا ہے، اور میں آخر میں تمام معزز شاملین کا، مہمانوں کا، شاعرہ کا اور شعراء کرام کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ آپ ہی کی وجہ سے تو یہ محفلیں سجتی ہیں، اور اللہ آپ کو خوش رکھے، زندہ سلامت رکھے، اور پھر بھی یہ محفلیں سجتی رہیں، اگرچہ حالات اب کھل رہے ہیں، اب وہ بالمشافہ مشاعروں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے،